Okay. So sorry I'm a little late today, but good you had a nice kirtan. One 623. Satsevaya dirgayapi सत्सेवया दीर्घयापि jata mai dridamati जाता मयि दृढामतिः vadyam lokam हित्वा वद्यमिमं लोकम् janatamasi गन्तामथ जनतामसि Satsevaya adi gayapi सत्सेवया दीर्घयापि Tatsevaya adirghayapi सत्सेवया दीर्घयापि jata mai dridamatihi जाता मयि tam हित्वा वद्यमिमं लोकम् janatamasi गन्तामज्जनतामसि Sat Sevaya, That's the by the service of the absolute truth, service of the absolute truth. Adirgaya, Uh, for some days, for be even Jata, having attained Mai unto me, Drida, firm, Matihi, intelligence, Hitva, having given up, Avadyam, deplorable, Imam, this, Lokam, material words, Ganta, going to, Mat Janatam, my associates, Asi, become. By service of the Absolute Truth, even for a few days, the devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material world. By service of the Absolute Truth, even for a few days, For a a few days, devotee attains a devotee firm attains and fixed intelligence firm and fixed intelligence. in me. Consequently, he goes on to become an associate in the transcendental world after giving up pleasant, deplorable material world. Raise hand those who want to read. Yes, Devachandra Pariya. Chalo, we try. Hare Krishna Dandavat Pranam Prabhuji. Loudly, we can't hear. Purport. Serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of Godhead under the direction of the bona fide spiritual master, who is a transparent medium between the Lord and the neophyte devotee. The neophyte devotee has no ability to approach the absolute personality of Godhead by the strength of his present imperfect material senses, and therefore, under the direction of the spiritual master, he is trained in transcendental service of the Lord. And by such training, even for some days, the neophyte devotee gets intelligence in such transcendental service, which leads him ultimately to get free from perpetual inhabitation in the material worlds and to be promoted to the transcendental world to become one of the liberated associates of the Lord in the kingdom of God. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunyavadi Pashat Deshatarini Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्सेवया दीर्घयापि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः। जाता मयि दृढा मतिः। तावत् लोकम् हित्वा वद्यमिमं लोकम् मज्जनतामसि। गत्ता मज्जनतामसि। My service is absolute. Even for a few days, the devotee attains firm and fixed intelligence in me, consequently goes on to become my state in the transcendental world after giving us the present deplorable material world. हरे कृष्णा। तो ये शब्द थोड़े मुश्किल हैं, कैसे बोल देते हैं लोग। डिप्लोरेबल मटेरियल, हमको तो ये दुनिया बहुत सुंदर दिखती है ना, बहुत आकर्षक। डिप्लोरेबल। पापा जो अमेरिका शिप में पहुंचे थे बोले, कृष्णा व्हाई डिड यू ब्रिंग मी टू दिस रिचर्ड प्लेस, ये गंदी जगह मेरे को क्यों ले आए। सो द मटेरियल का मतलब ही ये होता है, मटेरियल मीन्स जहाँ पे भगवान नहीं। पहले अगर कैसा कोई गांव या शहर है जहाँ मंदिर नहीं है, लोग उधर जाते ही नहीं। देखो मूलतः पहले लोग मंदिर ही जाते थे कहीं भी, पहले सबसे पहले, और वहाँ फ्री प्रसाद भी मिलता था, रहने का भी अरेंजमेंट रहता था। तो और कहाँ जाएंगे, होटल की ज़रूरत नहीं थी पहले तो, ना रहने की ना खाने की, बिकॉज मंदिर पूरी व्यवस्था कर देते थे। हम ये देखते हैं कि विदुर जी ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कौन सा होटल में रहे, नहीं मंदिर में रहते है ना। ऐसे कोई डिस्कशन नहीं कहीं पे, विदुर जी जब पूरे भारत ट्रैवल किए, किस किस होटल में रहे, ताज में रहे, इधर नहीं मंदिर में रहते। मंदिरों में पूर्ण व्यवस्था थी। जैसे अभी हम मंदिर बना रहे हैं, आपका गेस्ट हाउस बना रहे हैं, फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती थी। मंदिर बहुत ही समृद्ध होते थे। मंदिर के पास हजारों एकड़ ज़मीन होती थी, उसको खाने की, लोगों को खिलाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत उसके पास खुद अपना लैंड में फैसिलिटीज भी हो। सो डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल मतलब डिप्लोरेबल मटेरियल वर्ल्ड। जब तक हमको भौतिक सुख और भौतिक दुनिया, कोई आपको बोले चलना है, एक बड़ा सिनेमा लगा है, एडवांस हो गया है ना, तामसिक आदमी और सात्विक आदमी एक सा ही दिखता है। सात्विक आदमी बोलेगा मैं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है उसमें उसके पास बुद्धि है, ये समय बर्बाद है। तामसिक आदमी भी बोलेगा मैं नहीं जाएगा, लेकिन उसका कारण है वो आलसी है, जाना चाहता है। उसके सामने मोबाइल में मूवी ऑन कर दो, हाँ, तो मतलब अभी वो उसको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है, बट बाहर से एक से ही दिखते हैं, है ना। तो और हम भी ऐसे मूर्ख के सोचते हैं, हाँ बुद्धि आ गई है, अभी बुद्धि नहीं आई है, अभी बुद्धि आती तो आकर्षण नहीं होता। डिप्लोरेबल मटेरियल, ये शब्द एक आचार्य के मुख से हैं, जो महान बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धि, आजकल बुद्धि का डेफिनेशन निकल आता है। स्कूल कॉलेज में कोई मैथमेटिक्स में मार्क्स सेट कर दिए, 100 में से उसके 80 आ गया, बहुत बुद्धिमान है। IQ टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, उसमें आपको कुछ दे देंगे। बड़े आपके MBA में भी ऐसा ही है ना, इट्स एबिलिटी टेस्ट, उसमें वो सारे वही होते हैं। आपका 1, 11, 25 नेक्स्ट नंबर बता, और ऐसे करके खाली आपको 20 प्रश्न देंगे, 5 मिनट देंगे, तो आदमी का पूरा, और वही बहुत बुद्धिमान। ये बुद्धिमान व्यक्ति के पूर्ण लक्षण नहीं है, इसलिए भगवद गीता में बुद्धि का कुछ और लक्षण दिया है। येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। इस श्लोक में लिखा है, जो भगवान की सेवा थोड़े टाइम के लिए भी करता है गुरु के आश्रम में, उसको ऐसा बुद्धि प्राप्त होता है जिससे भगवत धाम जा सकता है ना।
असली बुद्धि प्राप्त होता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे तो उनको लोग ये प्रश्न, पहला प्रश्न कोई भी बोलता, स्वामी जी आप इतनी उम्र में इतना दूर से भारत से यहाँ क्यों आए? ऑब्वियसली तो प्रभुपाद जी जनरली बोलते मेरे गुरु ने आदेश दिया इसलिए मैं आया, सिंपल। लेकिन कभी प्रभुपाद जी ने इंटरेस्टिंग आंसर दिया कि एक्चुअली मैं आप लोगों को बुद्धिमान बनाने आया, आप लोगों को बुद्धि देने आया हैं। इंडिया से अमेरिका बुद्धि दे रहे, उनके बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर हैं, सारे नोबल लॉरेट उधर हैं, है ना। तो प्रभुपाद को सब मूर्ख दिख रहे थे। और क्या दिख रहे थे? मूर्ख। अभी भी होता है, हम कॉलेज जाते हैं, ठीक है, आज भी बहुत लोगों को जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को मिलते हैं, प्रिंसिपल को मिलते हैं, बैठते हैं, ठीक है, वो तो स्नेह है, 20 साल से जानते हैं, लोग स्नेह करते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक, जो जनरल फैकल्टी है, वो क्या सोचता है? वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है इसको कुछ काम नहीं था शायद, ऐसे ये भटक रहा है ना, और कुछ मतलब का चीज़ नहीं है, समय व्यर्थ कर, अपना कुछ काम नहीं हो और हमारा भी समय बर्बाद करने आए। कोई ये भी नहीं सोचता है कि एक्चुअली ये व्यक्ति कुछ बुद्धि लेके आए जो हम सब में नहीं है। बुद्धि बहुत बड़ा शब्द। येषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। तो असली बुद्धि प्राप्त होती है तो आदमी को भगवान के पास जाने का इच्छा प्रकट हो जाती है, अब बुद्धिमान बन गया। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, फेमस श्लोक, उसमें क्या बहुत अच्छे से लिखा है, क्या लिखा है उसमें? कामादि नाम कठिन कटित फलित दुर्निदेश। इससे काम के जो 6 भाई बहन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि, काम आदि नाम कठिन कटित, इस बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद करिए। अभी मैं कॉपी और पेन खरीद के ला रहा हूँ। काम आदि नाम कठिन कटित फलित दुर्निदेश। इसने कितने 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 आदि, आदि मतलब इन्होंने काम कठिन कठिन कितने 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 उसने आइडियाज़ दे, ऐसे करना मज़ा आएगा, ऐसा करना मज़ा आएगा, पालित दुर्निदेश, और मैंने वो सारे आदेश पालित किए। किसने आदेश दिए? देखिए हमारा नेचर है, जीव का नेचर है आदेश का पालन करना। कामादिनाम कटिन कटिद पालित दुर्निदेश। लेकिन हमने गलती से आदेश कौन से का पालन किए? दुर्निदेश। दु मतलब गलत, दुर्योधना दुशासन, दु मतलब दुबुद्धि। हमने ये गलत गलत आदेश जो आए, किसके आए? काम क्रोध के सारे पालन किए। क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? तेषाम जातमयि न करुणा न त्राप न उपशांति। लेकिन इन आदेशों का पालन करने से, श्री राधा गोविंद की जय, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की जय। इन आदेशों का पालन करने से हुआ क्या? न करुणा, मेरे को इन लोगों ने कोई दया नहीं दी। ऐसे इंद्रिय भोग करो, किया, आज भी कर इस तरह, फिर किया, कोई करुणा नहीं, चलो छोड़ दो इसको। जैसे आप कुछ लोगों को बुरी आदतें लग जाती हैं, कोई सोच सिगरेट पी रहा है, अभी रात को 10 बजे एक और सिगरेट लाओ, बेचारा ढूंढ ढूंढ के। कॉलेज में क्या होता है, उस समय सिगरेट मना होती है, और सिगरेट का कॉलेज के कितने किलोमीटर तक पॉइंट अलाउड नहीं होता है ना, बंद। लेकिन ढूंढ के दो चल के, कहीं दुकानदार होते हैं, दुकान चाय की होगी, पीछे छुपा के रखते हैं उसको, कॉलेज में बोलते हैं सुट्टा पॉइंट। एक बार मेरा क्लास था कॉलेज में, मैंने पूछा बच्चों को कैसे बताऊं मेरा क्लास किधर है? सर बोल दो सुट्टा पॉइंट और गांजा पॉइंट के बीच में, सब पहुंच जाएंगे। सुट्टा पॉइंट, गांजा, ये देखो, ये सब ये बुद्धि सिखाई जा रही होगी, हैं? तो ना करुणा मतलब, और 10 बजे आप सिगरेट पी के आए और 11 बजे एक और पी, कोई दया नहीं, बेचारा थक जाएगा, क्यों, उसको छोड़ दो भाई, कितनी बारी मैंने उसको घसीटा है, छोड़ दो। नहीं, कोई करुणा, इंद्रिय भोग आपको कोई करुणा नहीं देगा, है ना। न त्रापा, नो शेम, ऐसी हरकत कराएगा कि अगर माँ बाप को पता चला या आपकी फैकल्टी को, दोस्तों हंसेंगे, खुश होंगे, ताली बजाएंगे, स्मार्ट हो गया, लेकिन माँ बाप को पता चला तो बड़ी इज्जत निकल जाएगी हमारी, है ना। क्या बेटे, तेरे से उम्मीद नहीं थी, इतना मेहनत करके। देखिए बच्चे को पालन पोषण में कितना मेहनत होता है ना। 18 साल तक पसीने निकल जाते हैं, 90% बच्चे आजकल बिगड़ जाते हैं। जैसे ही कॉलेज में डालो, आपकी 18 साल की मेहनत कितने में
1-2 महीने में निकाल देते हैं, सारे दोस्त मिल के निकाल। क्या तूने सिगरेट नहीं पी, साधु है क्या? तो उनको दिखाने के लिए पीनी पड़ जाती और खत्म। ठीक है, तो कामादि नाम कठिन कटित फलित दुर्निदेश तेषाम जात मई न करुणा, कोई करुणा नहीं, कोई शेम नहीं और न उपशांति। उसके बावजूद भी कभी भी मन खुश नहीं। चले यार, तूने इतनी मेहनत की, इस तरह तूने इंद्रिय भोग किया, अब तू थोड़ा शांत हुआ? नहीं, ना उपशांति। अगर सोचो आपको ऐसी जॉब लगी जिसमें बॉस आपको 20 घंटे काम करा रहा है, करुणा, कोई शर्म नहीं, उल्टे पाप कर्म करवा रहा है, जो आपको लगता है गलत चीज़ है वो भी करना पड़ रहा है, और उसके पास हमेशा चिल्लाता रहता है, तो आप जॉब से रिज़ाइन करोगे नहीं करोगे? सॉरी वर्ती नहीं, है ना, कन्नड़ा बोलोगे ना, वर्ती नहीं आओगा मैं। मेरे को मालूम नहीं था एक्चुअली क्या हुआ। मैं जब यहाँ आया, वर्तिनी का मतलब मालूम था, लेकिन मालूम नहीं था इसका मतलब है नहीं आऊँगा। मैं गीता बेचता था को केजी रोड में, कस्तूरबा गांधी रोड में, तो लोगों को दिखाता था, फिर लोगों को बोलता था, लो भाई, वर्तिनी बोलते थे। मैं सोचता था आएंगे, वो कभी नहीं आया। वर्तिनी मतलब गया, थैंक यू, मालूम नहीं। ठीक है ना, करुणा, सो नो शेम, न करुणा, न त्राप, न उपशांति, तब भी हम काम आदि का सेवा नहीं छोड़ते। कामादिनाम कठिन कटित फलिता उपनिर्देशाम जात में करुणा न ताप न उपशांति उसृजयितान। उसृजयते मतलब गेट लॉस्ट होगा ना, बॉस को क्या बोलोगे? सर बरती नहीं। ठीक है, उसृजयितान, क्यों? सांप्रतम लब्ध बुद्धि, अब मेरे को बुद्धि आ गई है। तो बुद्धि का ये नहीं उसको ऑल इंडिया रैंक इतनी है, बुद्धि का ये मतलब नहीं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है ना, ये उसका ये मतलब नहीं। बुद्धि का मतलब, असली बुद्धि का मतलब क्या? वो भी तो बुद्धि है ना। दारू पीना, सिगरेट पीना तो बेवकूफ़ी नहीं है क्या? है ना। बुद्धि का ये मतलब नहीं। आजकल बुद्धि का मतलब कितना मार्क्स उसका आया और शाम के दारू पी रहा, वो तो बुद्धि नहीं है, वो तो बेवकूफ़ी है ना। तो हम बुद्धि को थोड़ा प्रॉपरली क्यों नहीं देखते? आजकल बुद्धि कितना मार्क्स आया बता, उसका कैरेक्टर क्या है? बदतमीजी करता है, उसको सभ्यता नहीं है, लोगों से बात करना भी नहीं आता, और बुद्धिमान है? नहीं, बुद्धिमान नहीं है वो, है ना। बुद्धि ऑल एनकम्पासिंग होती है, खाली लोहा टेढ़ा करना बुद्धि नहीं होता। बहुत इंटेलिजेंट होता, लोहा जल्दी से लोहा टेढ़ा करता है। अरे कैरेक्टर उसका कैसा है वो भी तो देखो, है ना। सो असली बुद्धि वो भी नहीं है, मॉरल असली बुद्धि है सांप्रतम लब्ध बुद्धि। क्या बुद्धि है? पाम आयातः, कृष्ण जी मैं आपके शरण में आया, माम नियुंक्ष, आप मेरे को आश्रय दीजिए, ये असली बुद्धि है। असली बुद्धि प्राप्त होने में आदमी भगवान के चरण में आश्रय करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी दी गई है, इस श्लोक में दी गई ना। थोड़ा भी समय अगर भगवान की सेवा करेंगे गुरु के आदेश के अनुसार, ऐसी बुद्धि आपको प्राप्त होगी जिससे भगवत धाम चले जाओगे। ठीक है, तो ये बुद्धि एक्चुअली असली बुद्धि है, और ये असली बुद्धि तब आती है जब आप असली काम करते हो। एक तो काम कर रहे हैं हम लोग, ऑफिस जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, असली काम आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे प्रभुपाद और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। उस प्रसन्नता के कारण कृष्ण जी हृदय में बैठे हुए आपको बुद्धि प्राप्त करते हैं। भगवद गीता के चतुर्श्लोकी में चौथा श्लोक भी यही है। क्या किसी को याद है चौथा श्लोक? पहला श्लोक क्या है चतुर्श्लोकी में? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्वितः मच्चितामतगता प्राणा बोधयस्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। तीसरा भी हो गया जो अभी आज के श्लोक से कनेक्टेड है। चौथा फाइनल वन कौन बताएगा भाई? चौथा चतुर्श्लोकी में चौथा श्लोक किसको याद है? हाथ खड़ा करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ? बोलो। येषां सततयुक्तानां भजतां येषां सततयुक्तानां
भजत सॉरी। नहीं, मैं उसके बाद का बोल रहा है, ये तो तीसरा है। यस जी मनी प्रभु जी। मन, चौथा श्लोक। तेषामव एवानुकम्पार्थम् अज्ञानजम् अजमतमः नाश्याम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः। वेरी गुड। कुमुदा माता जी, आपको भी याद है ये श्लोक, रिपीट करो। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तेषां तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा, वेरी धन्यवाद गुड, प्रभु जी। थैंक यू। आप लगता है कि कृष्णन सर से वो श्लोका ट्रेनिंग कर रहे हैं। येषामेवानुकाम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं अनुकंपा। अनुकंपा मीन्स करुणा के कारण। जब कृष्ण जी देखते हैं, ठीक है ना, कि अनुकंपा, अरे बहुत ध्यान से मेरा नाम जप कर रहा है, तो कृष्ण जी उस पर दया करते हैं। अनुकंपा अहम अज्ञान जमतमः। कृष्ण जी हमारे हृदय में जो अज्ञान है वो निकाल देते हैं। नाशयामि आत्मभावस्तो, पूरा अंधकार नाश कर देते हैं। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वते, ज्ञान का दीप जला देते हैं। ये ज्ञान का दीप क्या? आपको सब न्यूटन लॉज याद हो जाते हैं, सब समझ आ जाते हैं। नहीं नहीं, कैलकुलस नहीं नहीं नहीं, वो सब छोटा चीज़ है। मूल चीज़ भगवत धाम जाने का रास्ता भगवान क्लियर करो। आपको पता नहीं कितने लोगों ने आपने पुस्तक वितरण किया है। मुझे अभी भी याद है, पहला मेरा सर्विस उसको बहुत आनंद आया था। मैं करीब 92-93 में ज्वाइन हुआ था। तो मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मैं भी जाता रहता था, धन एकत्र करता था मंदिर के लिए, अच्छा लगता था। लेकिन अभी भी कुछ आनंद मिसिंग था। तो मंदिर के खुलने के बाद मेरे को एक सेवा मिली, पुस्तक वितरण, भगवद गीता का वितरण। उसमें बहुत आनंद आया। और यही नहीं, मैं भक्तों को बोलता था कि एक बारी क्या हुआ, जो मेरा टीम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, बोला हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो बहुत गुस्सा हुआ। मैंने कहा तुम लोग कुछ सेवा का मतलब ही नहीं है, वो तीर्थ यात्रा जाओ। सर हम पंढरपुर जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे किताब लेके जाओ। सर ठीक है किताब। तो ट्रेन में जा रहे थे सब लोग, और तो सब बैग्स भर के ले गए। उस समय हमारे को डिस्कवर हुआ ट्रेन में पुस्तक वितरण। बहुत सबको आनंद आया। मैं नहीं था, सब वॉलंटियर्स गए थे। आते कितना मज़ा आया। और ऐसा खुशी जैसे ही भगवत धाम हो के आए, ऐसा खुशी होता है। तो कभी कभी सेवा करने में भगवान की कृपा से इतना खुशी होता है, जैसे भगवत धाम का दर्शन मिल गया। बहुत सुंदर। क्योंकि भगवान जब, प्रभुपाद जी बोलते थे, सब सेवा में उनको सबसे प्रिय सेवा गीता का वितरण है। मेरे दिल का इच्छा है एक पूरा मंदिर ये गीता वितरण सेंटर बना देंगे। मंदिर में तो बहुत तरह तरह की ट्रिक्स लगाएंगे। आप आरती कर सकते हैं, गीता फ्री मिलेगी, ऐसे कर करके खाली एक काम, गीता 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 गीता। एक वॉलंटियर था हमारा, वो ऑल्टर के सामने खड़ा रहता था, फ्री फ्री फ्री, गीता फ्री फ्री। लोग हाँ गीता फ्री है, हाँ ले जाओ ले जाओ, हाँ ये आरती के साथ फ्री है। और उस समय, ये अभी का बात नहीं है, 97 का बात है, उसमें भगवत गीता हमको मिलता था करीब 100 रुपये में। तो 150 रुपये में हम दे देते थे, आरती भी देते थे, 2 लड्डू भी देते थे, गीता भी देते थे। और इतना वो था, लोग खुश होते थे कि दिन में 300 से 500 गीता बिक जाता था इससे आराम से, कोई मेहनत नहीं। मेरे पास काउंटर में एक और आदमी था, वो तो मैं उसको अपनी जगह से जगह ऑल्टर में बैठा देता था। उसका काम था, लोग आए उनके लिए आरती, उनका वो संकल्प लेने का, आरती करने का, और उनका वो चीटी देते थे, वो उससे 150 रुपये की उसको भगवत गीता देने का, 2 लड्डू देने का, तुलसी देने का। बहुत खुश होके जाते थे वो। काउंटर में इतना मेहनत, तेरे को गीता लेना है, गीता का, वो ऑटोमेटिक गीता जा रही थी, आरती करो गीता लो, आरती करो गीता लो, ऐसे करेंगे। और चारों तरफ मतलब शेल्फ में पूरा प्रभुपाद के भागवतम, चैतन्य चरितमृत। मूलतः हमारा इस्कॉन के मंदिर से अगर कोई गया तो 2 चीज़ लेके जाने का। एक चीज़ हरे कृष्ण मंत्र उसके मुख में होने, मतलब जाएगा हरे कृष्ण, चारों तरफ लिख दो,
ठीक है, वही उसको सुनने का है ना, जिसको देखेगा क्या करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र लेके जाने का उसको, है ना। और दूसरा चीज उसको एक भगवत गीता, प्रभुपद का है भगवत गीता। तो मूलतः लोग जो खरीदते हैं मूलतः गीता खरीदते हैं। आपको बुक काउंटर में अगर आप देखोगे कहीं पे भी रेशियो ले लो, 90% गीता, 10% बाकी किताब लेते हैं, ठीक है। तब बहुत अच्छा रहेगा, हजारों गीता। और उसके बाद नीचे हम लोग एग्जीबिशन रखेंगे, नीचे का जो हॉल है एग्जीबिशन, उसमें गीता के कंसेप्ट चारों तरफ लगा देंगे। तो लोग उसमें कोई भी अगर आया आदमी उसको समझाओ, देखो बॉडी चेंज का मतलब ये है, वैकुंठ का मतलब ये है, देख जनलोक तपलोक सारे लोग देख, वैकुंठ ये है। हाँ, और कोई फिलॉसफी, जितने गीता के फिलॉसफी के पॉइंट हैं, कृष्ण जी सर्वोत्तम है, सारे देवता कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। नरक लोग ऐसे होते हैं, तरह तरह का, चारों तरफ हॉल में एग्जीबिशन। तो लोग बस हाँ ऐसा होना चाहिए, ऊपर नीचे पूरा उसको। और उसके बाद अगर उसके हृदय में थोड़ा भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसको कोर्स के लिए रजिस्टर कर दो, हमारा पीछे कॉलेज भी रहेगा। और अगर उसको कुछ प्रश्न हुए पूछने हैं उसकी लैंग्वेज में, ऊपर 20 रूम है, वहाँ पे 20 लोग बैठा देंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, हॉस्पिटल में, ये रूम में चले जाओ, उसको बोल देंगे रूम नंबर 6, रूम नंबर 11 चले जाओ, और वहाँ पे कोई उनके उस लैंग्वेज में डाउट्स क्लियर कर देगा। कितना अच्छा रहेगा। और वो भी सब लोग गीता लेके बैठे रहेंगे, गीता लिए अभी तक नहीं लिए, गीता ले ले, ठीक है। तो हर दिन हमारा रिजल्ट होना चाहिए 1000 गीतास डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर ऐसा करेंगे हमारा टेम्पल, मेरे को ये प्रिविलेज था पहले, हमारा टेम्पल वर्ल्ड का नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था जब मैं बैंगलोर में था। इस इज अराउंड 97, 98 टिल 2002 तब मैं बैंगलोर आया। वही चीज़ यहाँ भी कर देंगे, हमारा टेम्पल वर्ल्ड में नंबर 1 पहुँच जाएगा। जहाँ भी जाओ, लोग कहीं भी गए, गोविंदास में खाना खा रहे हैं, गीता अवेलेबल है छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज बाकी चीज से कुछ नहीं होने वाला। बुद्धि दे दो, क्या फायदा है मंदिर आया और बुद्धि नहीं मिली उसको। और हम प्रभुपाद जी बोलते थे, तुम्हारी 3 मिनट की प्रीचिंग क्या करेगी अगर मेरा एक परपट पढ़ लेगा उसका जिंदगी बदल। वो घमंड से नहीं बोल रहे, वो सच में बोल रहे हैं। क्या होता है, एक चीज जब प्रिंटेड कोई चीज होती है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। ब्लैक एंड वाइट आपने पूरा फिलॉसफी को डाउन लिख दिया, हवा में बात करते हैं ना लोग, भूल जाते हैं उसको, भूलते नहीं। आपने 10 मिनट बात करी, वो भूल के चला जाता है। जब आचार्य के मुख से सुनता है, बहुत रिस्पेक्ट से सुनता है। एंड प्रभुपाद नोस, प्रभुपाद जी जानते हैं कैसे उसके हृदय में परिवर्तन करना है, ठीक है। सो इट विल बी वेरी नाइस इफ हम लोग ऐसा सिस्टम इस्टाब्लिश करेंगे कि लोग भगवत गीता लेके जाएंगे, और उसके लिए आइदर ऑनलाइन या टेम्पल में कोर्स भी रजिस्टर कर लेंगे, है ना। तब कितना खुशी होगा, कितना खुशी होगा हर दिन। मंदिर मतलब एक आओ 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 कोई आना है, आओ अंदर, बाहर आएगा गीता लेके, मुख में हरे कृष्ण मंत्र जपमाला लेके, 2 चीज उसको छोड़ना नहीं, उसको इन दोनों चीज के अलावा। इफ यू कैन एस्टैब्लिश दिस वी विल बी वेरी सक्सेसफुल, है ना। नहीं तो क्या है, ठीक है, इट इज़ गुड, बट इफ यू कैन डू दिस इट विल बी वेरी वेरी गुड। तो हमेशा हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि असली बुद्धि को, अपनी ही असली बुद्धि को अवेकन करना। भगवान से प्रार्थना करिए तो ये बुद्धि जागृत होती है। ये बुद्धि आपको क्या लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है ना इसमें, ये बुद्धि भगवान देते हैं। ऐसा नहीं थी कोई नॉर्मल चीज़। क्या होता था, जैसे आपका एग्ज़ाम है और आपने पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करते थे, आप पता नहीं, आप लोग तो शायद ऑर्गेनाइज हो गए, मैं तो कॉलेज जाके रात को नाइट आउट मार देते, पूरी रात को चाय पीते रहते थे, कॉफ़ी पीते रहते थे। आप भी अभी भी करते हो सर, हैं? पूरी रात को कॉलेज के हॉस्टल में होता था, चाय का अड्डा या जाएंगे वहाँ चाय पियेंगे, कॉफ़ी जगह रहेंगे, और रात में पूरे सब्जेक्ट को समझ जाते थे, सुबह पास हो जाते। तो मतलब खुद मेहनत से आप जो उसको पकड़ सकते हो, किसको पकड़ सकते हो, बुद्धि को पकड़ सकते हो। लेकिन ये जो आध्यात्मिक बुद्धि है, ये पकड़ी नहीं जाती, ये दी जाती है, आपकी सेवा देती है ना। आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं जहाँ पे बुद्धि रखी गई है, लेकिन सेवा भाव से पढ़ोगे तो बुद्धि आपको अंदर आती है। नहीं तो एक थ्योरी की तरह पढ़ोगे, आपको विश्वास नहीं, बिकॉज ये चीज़ पे कैसे विश्वास, कुछ तो दिख नहीं रहा ना। आप खुद सोचो, हमको कृष्ण जी नहीं दिख रहे हैं, हमको वैकुंठ धाम भी नहीं दिख रहा है ना, तो कैसे इस चीज़ को स्वीकार करेंगे?
ये जब भगवान रिवील करते हैं तो ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन में होता है। अभी किसी को पूछो क्या ज़िंदगी का लक्ष्य है, बैक टू गॉड जाना। अरे तूने देखा है क्या? नहीं। हाँ, जैसे मैंने बताया था, एक बार प्रभुपाद जी क्लास में बैठे थे, बोले थे आप लोगों ने सबने देखा चमत्कार हो गया है, चमत्कार हो गया है। सब लोग प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे चमत्कार तो मूर्खों के लिए होता है। जनरली लोगों का ये है कि स्वामी जी के पास गए, साधु के पास गए, कुछ चमत्कार करेंगे। अभी मैं देखा एक रिलीजन में ऐसा बनाया है कि 2 चमत्कार कर दो तो आपको सेंट डिक्लेयर हो जाता है। अभी डिक्लेयर हुआ, एक आदमी सेंट डिक्लेयर हो गया, यंग लड़का है, उसने 2 चमत्कार कर दिए, ऐसा बोलते हैं लोग। उसने एक आदमी के सिर में हाथ रखा, उसका कैंसर ठीक हो गया। एक सिर के हाथ रखा, उसका कुछ हो गया चमत्कार, ये हो गया, सेंट हो गया है। और आजकल लोग यही चीज़ देखते। कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए कुछ चमत्कार किया था, परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कुछ ज्ञान दिया था। सबसे बड़ा चमत्कार होता है आप किसी का अध्यात्म का ज्ञान उसको स्वीकार करा दो। कृष्ण शक्ति बिना ना होए परिवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना आप किसी को असली में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे नारद मुनि का विवरण आ रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं, नारद मुनि का विवरण ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, है ना। क्या हुआ था नारद मुनि को? उसने कुछ दिन के लिए महान भक्तों का सेवा किया था और असली चमत्कार हृदय में हुआ, उसका ज़िंदगी बदल गई, है ना। इसलिए हम लोग भी एक्चुअली, मैं बता रहा था बहुत बारी, हम एक्चुअली सेवा कर रहे थे कुछ, सब लोग। मैंने खुद बताया था, एक भक्त आए थे, मैं उनके लिए थोड़ा झाड़ू लगा दिया था, ठीक है, कुछ सेवा कर रहे थे हम लोग। मंदिर जाते थे, पूछते थे प्रभु जी कुछ सेवा है क्या? और हाँ थोड़ा ये तुम ये जो सारे पंखे हैं ना, इसके पीछे तुम डस्ट निकाल दोगे। हाँ हाँ, ये सारी पेंटिंग्स है ना, फ्रेम होता है ना, पेंटिंग के फ्रेम होते थे मंदिर में, इसको डस्टिंग कर देना। हाँ, वो सेवा की वजह से, क्योंकि भगवान प्रसन्न हुए, हमारे हृदय में बुद्धि उत्पन्न हुई। वो बुद्धि आध्यात्मिक है और उसकी वजह से हम ऐसा निर्णय लिए कि चलो भगवान का सेवा करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, तो ये बुद्धि प्राप्त होगी, ये असली बुद्धि होती है। हम लोग क्या है, असली बुद्धि को जैसे हम लोग भौतिक शरीर को अपना असली शरीर मान लेते हैं गलती से, है ना, करते हैं ना भी। हम इसको बोलते हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन ये मूर्खता है, ये मेरा शरीर नहीं है। उसी तरह हमको, जैसे शरीर को, बुद्धि को भी हम गलत समझ जाते हैं, बड़ी बुद्धि उसमें नहीं। असली बुद्धि है उसके पास भगवत धाम जाने की इच्छा, और जब ये इच्छा प्रकट हो जाती है तो आदमी को जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा एवरीबॉडी। तो इस श्लोक में सारांश में यही दिया गया है कि थोड़ी भी सेवा अगर भगवान की, उनके भक्तों की होती है तो आदमी को असली बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वो भगवत धाम जाने का निर्णय कर लेता है। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आज जिन लोगों को टाइम हो, सेम 8 बजे सुबह भी क्लास हरे होता है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शाम को क्लास थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन आज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम, राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम, राम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहिए, आपको कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम।